discuss about the question number 8 of this exercise 10.2. So the given question is a quadrilateral ABCD. So this is quadrilateral is ABCD is drawn to circumscribe a circle. Prove that AB plus CD is equal to AD plus BC. यदि हम अपने शब्दों में कहें तो आपके पास एक चतुर्भुज है और उसके बीच में एक का सर्कल है, और आप इस डायग्राम में देख सकते हैं चतुर्भुज की जो चार भुजाएं हैं वो सर्कल की साइड्स को टच कर रही हैं। यदि ऐसा है तो जैसे फिगर नंबर 10.12 में आपको दिखाया गया है, तो आपको ये कहा गया है कि आप प्रूव करिए कि AB जो AB this side plus CD, so this is this side CD is equal to AD and the BC also. So the solution of the problem is, I will start from here. The solution of the problem is, this is the solution of the problem is, in a circle जिसका सेंटर O है, I mean I have to mark now the center of the circle, that is this O, okay, and some radius R. This is not given over here, and having it some radius R. Okay, so well, I would like to discuss the key idea of this question. Key idea क्या होगा? Key idea हम जो इस्तेमाल करेंगे सवाल को हल करने के लिए वो ये रहेगा कि यदि एक एक्सटर्नल पॉइंट से यदि टेंजेंट खींचे जाएं, हमने ये थ्योरम में पढ़ा था, किसी एक एक्सटर्नल पॉइंट से यदि टेंजेंट खींचे जाएं तो उनका जो डिस्टेंस है, वो जो लेंथ होती है वो बराबर होती है। ओके, सो दिस इज़ द आइडिया आई एम गोइंग टू यूज़। सो हम यहाँ लिखते हैं कि इफ़ tangents are drawn from external point, किसी एक्सटर्नल पॉइंट से यदि टेंजेंट ड्रॉ किए जाएं, then length of these tangents will be equal. तो टेंजेंट्स की जो लेंथ होगी वो बराबर होगी। नाउ हियर इन दिस क्वेश्चन, here A, B, C and D are external points. ये सब एक्सटर्नल पॉइंट्स हो गए। सो अब आप यहाँ से चलिए, A से चलिए। अब A से चलिए तो A से हो जाएगा आपके पास AP is equal to AS. These two tangents will be equal, equation number 1. And then another B point से चलिए आप, BP is equal to BQ. These two tangents are equal, equation number 2. C point पर आप चलिए, CR is equal to CQ, equation number 3. D point पर चलिए, this DR is equal to DS. So this is all about this is all about because of this key idea we have used, that the length of the tangents will be equal. So adding equation 1 to equation 4. ओके, सो तो तरीका क्या हुआ ऐड करने का? आप लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड ऐड करेंगे और राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड ऐड करेंगे। उसको आप देखिए किस तरीके से घटेगा ये सब। यू कैन सी इट ओवर हियर। आप लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड ऐड कर दीजिए, आपके पास मिलेगा AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR। ये लेफ्ट हैंड साइड जुड़ गई। राइट हैंड साइड में जोड़िए आप, दिस इज AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। ओके, हम ध्यान से ज़रा देखते हैं कि यदि हम AP और BP जो है, हम AP और PB की जगह हम क्या लिख सकते हैं?
you can write AB over here, okay, plus in place of CR plus DR, in place of CR plus DR, you can write CD is equal to, in place of AS and DS, this part and this part, AS plus DS is equal to AD. This is equal to AD plus remaining lengths are BQ and CQ. This is equal to uh, BC. Okay, BC. Now see carefully. This is the same. Uh, these are all the same parameters that is asked from us to prove. Here you can see. ये आप देख सकते हैं. आप यहाँ देखिए. ये देखिए यही आपसे पूछा हुआ है कि AB plus CD is equal to AD plus BC. Okay. This is all about this question. सवाल नंबर 9 को समझने की और फिर उसके बाद उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. ये रहा आपके पास क्वेश्चन नंबर 9. Figure number 10.13. Figure number 10.13 is given over here. X by, this is this point is X and this point is Y, and X prime by prime. This is X prime by prime is another line segment. These are two parallel tangents to a circle with a center O and another tangent AB. This is another tangent which is tangent at point C. The point of contact is C, intersecting XY at A and X prime by prime at point B. So you are asked to prove that the angle at O is 90 degree. So this is what we have to prove. So this question is so interesting for us to do. हम इसमें जो की आइडिया इस्तेमाल करेंगे वो बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा. की आइडिया इसमें ये रहेगा, इसमें की आइडिया ये रहेगा. दिस की आइडिया इज कि जो टेंजेंट जो है, tangent at the point of contact will be perpendicular to the center through the radius, right? So ये जो एंगल होगा हमारे पास वो 90 डिग्री होगा. हम ये कह सकते हैं कि यहाँ की आइडिया ये रहेगा कि हम ये कहेंगे OP is perpendicular to X by comma this is OQ is perpendicular to X prime by prime, and if we construct it is in such a way, we'll connect this the point O with C, then but we'll find that this angle is also 90 degree from here. So OC, yes, I can write now. This is and OC is perpendicular to AB. So this is the sole ideas to solve this question. So we'll start with we have the 4 triangles over here, 4 right angle triangle over here. I will select this as 1 and this is 2 and this is the third right angle triangle. This is the fourth right angle triangle. So see here, this is tangent at point P, so this angle is 90 degree. So first thing. And in the second triangle, this is tangent at point C. So this is obviously this angle is 90 degree. So this is also 90 degree. So it's interesting to do it. This is also 90 degree. So we'll first select these two right angle triangle over here. Now see, from triangle, the solution is from right angle triangles mean OPA, sorry, right angle triangle is OPA and the triangle is OCA. So you have these two triangles, triangle number 1 and triangle number 2. So see here, angle at P is equal to angle at C. So I can write it like this, angle OCA. So both of these angles are 90 degrees. So one thing, and then I can write OP is equal to OC. How these are equal? Because this is the radius of the circle. So they have to be equal. And the third thing is OA, sorry.
ओ ए इज इक्वल टू ओ ए। सो इसमें एक एंगल बराबर हो गया, दो साइडें बराबर हो गई। और यदि ऐसा होता है तो जो अब आपने थ्योरम वाले पार्ट में इसको पढ़ रखा है कि हम इसका कंसेप्ट का यहाँ इस्तेमाल करते हैं यूजिंग साइड एंगल साइड कंसेप्ट। हम ये कह सकते हैं कि जो आपकी ट्रायंगल्स हैं जो हमने सेलेक्ट की हैं, दिस इज ओ पी ए इज कॉन्ग्रुएंट, हिंदी में कहेंगे तो सर्वांग सम। सर्वांग का मतलब सभी अंग बराबर होंगे। ये आया ट्रायंगल, दिस इज ओ सी ए। सो ये सर्वांग सम होंगे। यदि ये सर्वांग सम होंगे तो हम ये कह सकते हैं कि ये एंगल जो है, ये एंगल नंबर इसको हम 1 कहें, तो इसको यदि हम एंगल नंबर 2 कहें, देखिए ये 90 है तो ये 90 है। सो हम ये कहेंगे कि एंगल नंबर 1, दिस मीन्स दैट एंगल नंबर 1 इज इक्वल टू एंगल नंबर 2। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। we will mark this as equation number 1. It will be very very important for us to go forward. उसके बाद हम चलते हैं कि इन ट्राइंगल नंबर 3 एंड ट्राइंगल नंबर 4. सो इन a right angle triangle, I will mark this as OCB, and another triangle is OQB. So it's very interesting. आप ये देख लीजिए कि एंगल एट Q is equal to angle at C. So this is what from the key idea we have discussed. एक की आइडिया में हमने इसका डिस्कशन किया है। और यदि आप आगे करें तो ओ क्यू जो है, ओ क्यू इज इक्वल टू ओ सी, ये जो दोनों हैं ये रेडियस हैं। सो बोथ ऑफ दीज आर रेडियस। एंड देन ओ बी इज इक्वल टू ओ बी, दिस इज अ कॉमन साइड, ये कॉमन साइड है। और यहाँ भी हम यहाँ लिख सकते हैं कि ये कॉमन साइड है। सो यहाँ फिर हम दोबारा से उसी कंसेप्ट का इस्तेमाल करते हैं यूजिंग SAS, साइड एंगल साइड कॉन्सेप्ट। दिस मीन्स दैट जो आपके पास ट्राइंगल आपने सेलेक्ट की है, दिस इज OCB इज ये सर्वांग सम रही कॉन्ग्रुएंट टू द अनदर सेलेक्टेड ट्राइंगल इज OQB। तो इसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जो एंगल नंबर इसको हम यदि 3 कहें और ये एंगल नंबर इसको हम 4 कहें, सो हम ये कह सकते हैं कि एंगल नंबर 3 जो है सभी अंग बराबर होंगे। इसका मतलब एंगल नंबर 3 जो है, देखिए यहाँ देखिए ये 90 है तो ये 90, ये 3 4 के बराबर है, तो ये वाला जो एंगल है वो इसके बराबर होगा। इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, इसकी हम उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। इसको हम लिख देते हैं इक्वेशन नंबर 2, राइट। सो अब हम चलते हैं आगे। हम ऐसा लिखते हैं, आप जानते हैं कि जो पी क्यू एक डायगोनल है, पी क्यू यदि एक डायगोनल है तो एंगल पी ओ क्यू जो है, एंगल हम इसको लिखें पी ओ क्यू जो है वो 180 डिग्री है, राइट। दिस इज़ 180 डिग्री। अब इस पी ओ क्यू का ब्रेक कर सकते हैं। आप इसको देखिए ज़रा ध्यान से, डायग्राम में 10.13 में जैसे हमने मार्क किया है, एंगल नंबर 1, एंगल नंबर 2 प्लस एंगल नंबर 3 प्लस एंगल नंबर 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। आप यहाँ ध्यान से देखिए, ये जो सारा एंगल है ये सारा इन 4 एंगल्स का ही सम तो है। ये देखिए ये एंगल सारा 180 डिग्री है। तो इसको आप ब्रेक करके ये यहाँ से यहाँ तक है एंगल नंबर 1, यहाँ से यहाँ तक है एंगल नंबर 2, यहाँ से यहाँ तक है एंगल नंबर 3 और यहाँ से यहाँ तक है एंगल नंबर 4, और इस सभी का जोड़ हो गया 180 डिग्री। सो अब आप इसको आगे लिख सकते हैं कि जो एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के बराबर है। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, तो एंगल 1 की जगह हम एंगल 2 लिख सकते हैं। मैं यहाँ लिखूँ एंगल 2 और एंगल 2 प्लस एंगल नंबर जो 4 है वो एंगल नंबर 3 के बराबर है। आप यहाँ देखिए फ्रॉम इक्वेशन 2 एंगल नंबर 4 इज इक्वल टू एंगल नंबर 3। तो आप यहाँ लिखें एंगल नंबर 3 प्लस एंगल नंबर 3, 4 की जगह आप 3 लिख सकते हैं। दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये 2 बार हो गया। यहाँ आप एंगल नंबर 2 को कॉमन निकाल लीजिए। जो कॉमन आप निकालते हैं तो आप अंदर वाली चीज़ों को उससे डिवाइड करते हैं। तो √2 से √2 कॉमन निकाले तो यहाँ √2 से √2 को डिवाइड करेंगे 1 आएगा। यहाँ से भी निकाला तो 1 आएगा। प्लस यहाँ √3 कॉमन निकालोगे तो यहाँ अंदर बचेगा 1
प्लस 1, ये आ जाएगा 180 डिग्री, राइट। तो यहाँ से बनेंगे 2 और यहाँ से बनेंगे 2, इसको हम लिख सकते हैं 2 एंगल नंबर 2 प्लस 2 टाइम एंगल नंबर 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ना यू कैन टेक 2 आउटसाइड, अब आप 2 से डिवाइड कर दीजिए। 2 से जब आप इसको यहाँ डिवाइड करेंगे तो √2 बचेगा, और यहाँ डिवाइड करेंगे तो √3 बचेगा। दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। आप ध्यान से देखें, एंगल नंबर 2 और एंगल नंबर 3 को यहाँ खोजिए। ये देखिए, एंगल नंबर 2 और एंगल नंबर 3 यही आपसे पूछा हुआ है। ये है एंगल AOB, इसी का नाम है, इसी का नाम है, दिस इज एंगल AOB। तो हमें लिख सकते हैं 2 टाइम्स एंगल AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, ये आगे जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो हमें लिख देंगे AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइड बाई 2, दिस इज इक्वल टू 90 डिग्री। I can write AOB is equal to 90 degree. This is what we have to prove in this question. So I think this question is very tricky and interesting to do. बहुत मज़ेदार ये सवाल था, तो मैं ये उम्मीद भी करता हूँ कि आपने इसका एंजॉय किया होगा। थैंक यू।